Bharat Vikas Parishad is always close to my heart. Or children, today is your quiz competition. You all are geared up for a very important event. The questions will be thrown to you in English, Hindi, both. And when you process the questions, hear them very carefully. Listen to every word that is questioned, process it, and the right answer you will get it from within. So choose the right answer because life is all about choices. This quiz is a complete symphony of what you do in your life. It's every moment you make a choice, right? So the quiz is all about making the right choice. And where does the right choice come? It comes from the ABCD that you learned. From birth to death, we are learning and learning all the while. And the C is all about the choice and about your own inner conscious, which will definitely give you the correct choice. So the C is for correct, C is for your conscious, and C is for the beautiful choices that you make. So make the best choice because there is something from within which will give you a click. Yes, this is the right answer. Right? It happens or it doesn't. It's like a cloud. Many thoughts will come and go, but you have to pick up that one choice which your inner self will guide you. So wish you all the best. Make the best choices. Listen to the question carefully. Process the question. Make a choice. Don't be in a hurry. Don't blur out an answer which you regret. Right? Take your time. There will be a particular time limit for all of you. Just listen to the careful question and give the right answers. Right may be not the ultimate right as per you. Right? And even if you make a mistake, no harm. You'll learn so many things because it is only when you make the wrong step is your learning doors opening. So wish you all the best and thank you so much Bharat विकास परिषद. आप हमें अपना घर समझते हैं, अपना समझते हैं और आपके जो भी प्रोग्राम्स हैं वो बच्चों के सेंट्रिक होते हैं. और भारत को जानो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे देश विदेश यूनिवर्स को जानते हैं लेकिन अपनी भारत को ही शायद नहीं पहचानते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी एक स्टेप है इन द फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद. The whole program that is run on the inspiration of Swami Vivekananda, who was the world's best and biggest teacher. He went from India back in those days and captured the crowd. And what was his first statement? Brothers and sisters of America. Right? So bringing that bonding, bringing that oneness and that closeness, we will start with our beautiful session. Thank you. Thank you. वंदे सबसे पहले तो मैं हमारी मैडम नीलम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भारत से रिलेटेड, देश से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो तो वो खुले हम सपोर्ट करती हैं. उसके लिए हम बहुत दिल से उनका धन्यवाद करते हैं. जोरदार तालियों से उनका स्वागत है. आज जिस प्रतियोगिता में आप शामिल होने आए हो ये 2000 में भारत विकास परिषद ने शुरू किया था. सन 2000 में तब हमारे पूरे भारत देश से 8 प्रांतों ने मिलकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी. यूपी वेस्ट के 8 डिफरेंट प्रांतों ने मिलकर ये कार्यक्रम की शुरुआत की थी जो 2003 और 4 में आते आते पूरे देश में ये कार्यक्रम पसंद करने लगे. ये प्रतियोगिता बहुत हिट हो गई और हर प्रांत ने इसको अपना लिया. इसके अंदर ऐसा होता है कि आप 4 लेवल पे, हमको नौलखा जी ने पूरी जानकारी दे दी, 4 लेवल पे होता है. अभी आप ब्रांच लेवल पे हैं, फिर आप प्रांत लेवल पे जाएंगे. प्रांत का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, पूरा मुंबई. उसके बाद आप रीजनल लेवल पे जाएंगे जिसमें गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र तीनों का एक रीजन होता है. वहाँ से जीत गए तो आप नेशनल लेवल पे जाएंगे. तो हमारा मकसद ये कॉम्पिटिशन रखने का ये नहीं कि आपको विनर बनाना है या आप हार गए या आप जीत गए. हमारा मकसद ये है कि आज यहाँ जो बच्चे आए हैं वो सभी भारत देश की जानकारी अपने घर ले जाएंगे. जीतना हारना अलग बात है, हमें आपको जिताना और हराना मकसद नहीं है. हमारा मकसद है कि आप भारतीय गौरवपूर्ण इतिहास और आज प्रगतिशील वर्तमान के बारे में जानकारी लेकर आप घर जाएंगे. तो आपका जो ये आज का दिन है
ये हमारे कन्वीनर पूनम शर्मा जी कहाँ पे है? पूनम शर्मा जी, पूनम शर्मा जी के नेतृत्व में ये आज हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इन्होंने अपनी मेहनत से 10 से 11 स्कूल यहाँ पर बुलाए हैं। इनकी इनविटेशन हर स्कूल को जाती है, कुछ स्कूल पार्टिसिपेट करती है, कुछ नहीं करती है, तो 11 स्कूल को इन्होंने आज यहाँ पर जमा किया है। और मैं आपको पूनम जी बहुत बहुत बधाई देता हूँ प्रांत की तरफ से कि आपकी इतनी मेहनत साकार हुई और इतने बच्चे आज आपको याद रखेंगे कि आपने जो उनको जानकारी दी। तो भारत विकास परिषद की ये इस एफर्ट में से हर बच्चा खुश होकर जाए यहाँ से कि हाँ आज हमने भारत के बारे में काफी जानकारी पाई, तब इनकी इस मेहनत का फल मिलेगा। क्यों बबीता जी? एक जोरदार ताली हमारी बबीता जी की। और इस संस्था का हर एक सदस्य जो है वो कर्मयोगी है। कर्मयोगी का मतलब है कि सत्कर्म करते रहना, देश के लिए, समाज के लिए और इंडिविजुअल के लिए नीडी पर्सन्स की हेल्प करना अपने सामर्थ्य के अनुसार। ये संस्था जब भी देखती है कि किसी स्कूल में हॉस्टल नहीं है तो हॉस्टल बनाने के लिए चाकरी होती है, मदद करती है। जब देखते हैं किसी स्कूल में बाउंड्री नहीं है, ये संस्था वहाँ भी बाउंड्री बना के देती है। संस्था देखती है भाई हॉस्टल के जो बच्चे हैं उनका ब्लैंकेट नहीं है, तो वहाँ पर ब्लैंकेट बांटने के लिए पहुँच जाती है। और कोरोना पीरियड में संस्था ने घर घर पे और राशन के पैकेट घर बगैर पे पहुँचाए। जो भी नीडी पर्सन थे उनके घर पर जाके अपने आप पहुँचाए। तो इस संस्था का बहुत सीनियर मेंबर हूँ, है ना, आप लोग ये बता रहे ऐसा नहीं है। तो आज मुझे सरकार ने बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब कर्मयोगी और इसी हुआ तो लेवल 1 में मेरे 4 राइट आंसर थे, तो 10 10 10 प्लस प्लस आगे आगे लिखते जाना। लेवल 1 10 प्लस 10 प्लस 10 so that you and we have scorer Madhumati Gadkari ji is there and I myself will be there as a scorer and Poonam Sharma will be overall taking care of the things. वो वेदांत के साथ कोऑर्डिनेट करना, दिशांत के साथ, दिशांत एंड वेदांत will be hosting the show, hosting the this thing and दिशांत will be taking care of the PPT का। तो इन दोनों का कोऑर्डिनेशन रहेगा, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आप लोगों को। तो उठा दो, ठीक है, सो दिस इज ऑल डन। अभी एक बार प्लीज ये लाइट्स बंद कर देंगे, देन वी कैन चेक इफ द For next round, we have the questions based on your relationships, right? Second level. So it's relations. आपके वो आपको questions में समझ में आ जाएगा, but आपको आपके family के relations guess करने हैं कि आपकी बुआ, की बेटी and all of that. Okay, we'll start with it. So the first question for T1, it is, who is your maternal grandmother's only daughter to you? आपकी नानी की एक लौती बेटी आपकी कौन होगी? चाची, मासी, माँ, बुआ। माँ, बुआ, माँ। Okay, that is true. एक mic. नानी की इकलौती बेटी आपकी कौन होगी? राजन सिंघानी। सारी टेबल्स पे माइक है सबके लिए। यस, आ जाएगा वो टेबल पे आपको, या आप लोग शेयर करेंगे। यस, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द नीड टू वुड बी, who is your wife's father's son's mother's only daughter to you? आपकी पत्नी के पिता के पुत्र की माँ की हो ना, इधर इकलौती बेटी इधर ही हो ना, कौन इधर ही हूँ। हाँ, सारी लग रही है ना। पत्नी, माँ, बेटी। पत्नी, पत्नी,
That's the correct answer. 1 point for both the groups. 1 or 2. Turn it on. Okay. Okay, so the next question for group 3 is, who is your uncle? मतलब your father's sister's husband's son, maternal grandfather to you. आपके फूफा के पुत्र का नाना आपका कौन होगा? आपके फूफा के पुत्र का नाना आपके कौन होंगे? पिता, दादा, ताऊ और चाचा। ले लेंगे इनके पास से बात Tahu? Sorry, okay, so next question for group 4 would be, who is your mother's sister's mother to you? मम्मी की बहन की मम्मी आपकी क्या लगती है? नानी, साली, सास, मौसी। नानी। That's the correct answer. 1 point for group 4. The next question for group 5. आपकी बहन की माँ की सास आपकी कौन होगी? आपकी बहन की माँ की सास आपकी कौन होगी? नानी, दादी, मौसी, बुआ। नानी। Correct. 1 point for group 5. The next question for group 6 would be, who is your mother's brother's son's mother's mother-in-law to you? आपकी माँ के भाई के बेटे की माँ की सास आपकी कौन होगी? A नानी, B दादी, C मौसी, नानी। Okay, 1 point for group 6. The next question for group 7 would be, who is your father's sister's son's only maternal uncle to you? आपके पिता की बहन के बेटे के इकलौते मामा आपके क्या लगेंगे? मामा, चाचा, ताऊ, पापा। आपके डैड हैं जो उनकी बहन है, चाचा। Relations now comes to an end. Now we will be moving to the third level, right? अब no more relation questions जिसमें आप लोग बहुत अच्छे हैं, so please clap for yourself once. Everyone participates. Yes, just take a minute for 5 minutes. Give us some time and we'll be back. Okay? जो ऑब्जर्वर हमारे साथ आए, मंजू जी हमारी शाखा की ऑब्जर्वर थी, और प्रांत के ऑब्जर्वर जो है वो संजय जी, सी संजय जी पोदार हैं, तो उनके लिए जोरदार तालियां कीजिए। और मैं प्रदीप सर और मनोज सर दोनों को रिक्वेस्ट करूंगी टू बी ऑन दिस। ये हमारे मेंबर्स हैं, दोनों सीएस हैं, सो विल बी हैविंग सीए क्यूब ऑन बोर्ड ऑन नाउ एंड आई वुड लाइक और संपर्क के मेन कन्वीनर जैसे हमारे ब्रांच के कन्वीनर। नमस्कार, वंदे मातरम। जैसा कि मैडम अरोड़ा ने आपको बताया कि भारत विकास परिषद का स्ट्रक्चर क्या है, हम ऑल ओवर इंडिया 1600 से अधिक शाखाओं में के साथ काम कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया हमारी 1600 से अधिक शाखाएं हैं, 80 प्रांत है और 10 रीजन है। और जो ये हमारी आज मीरा रोड, वैदिक मीरा रोड का जो प्रोग्राम हो रहा है, मुंबई कोंकण प्रांत के अंतर्गत आती है। मुंबई कोंकण प्रांत में 33 शाखाएं हैं, 33 ब्रांचेस। उनमें से वैदिक मीरा रोड एक ब्रांच है जिसका आज ये कार्यक्रम है। यहाँ से जो बच्चा या जो टीम विन करेगी वो प्रांत लेवल पे कॉम्पीट करेगी, और प्रांत लेवल पे जो टीम विन करेगी, 33 ब्रांचेज की वहाँ पे टीम जाएगी, 33 ब्रांचेज में जो विन करेगी वो रीजनल लेवल पे जाएगी।
और रीजन से भी सेंट्रल लेवल पे। वैसा ही हमारा ये संस्कार के अंतर्गत प्रोग्राम है। एक NGSC आप लोगों में से काफी लोगों ने ये पार्टिसिपेट किया होगा राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में, उसका सेम स्ट्रक्चर है। वैदिक मीरा रोड के अंतर्गत आज 11 टीमों ने 11 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ऑल द बेस्ट टू ऑल चिल्ड्रन। थैंक यू। Again over to Vedant and we'll continue with the quiz competition. A big applause. As a Bharat Vikas Parishad ka member, we always feel proud if we get some felicitation like this. So because ये क्या होता है, अपने में से कुछ अंश अपनी टाइम निकाल के या इनकम निकाल के हम लोग देश के लिए देते हैं बिना किसी स्वार्थ के। तो निस्वार्थ भावना जो होती है वो यहाँ पर इस तरह से होती है। संध्या जी माने विकास मित्र डेजिग्नेटेड टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर भारत विकास परिषद सेंट्रल ऑफिस। Group number 8, St. Thomas School. True. That's the right answer. Yes, that is. Congratulations. Next question, please. The first battle of Panipat was fought between Akbar and Himu. True or false? False. Is that the right answer? False. That is. Next question, please. To group 6. The Gupta period is called the golden age of Indian history. True or false? True. That is the right answer. Group 8. Next question, please. The capital of Vijayanagara Empire was Hampi. False. That was the wrong answer. I'm sorry. Next question, please. The Delhi Sultanate was founded by Qutbuddin Albaq. True. Is that the right answer? Group 10. Next question. The title of Chhatrapati was given to Shivaji Maharaj by Aurangzeb. False. That is the right answer. Please guys, not decorum, maintain your row. Don't consider the false is the right answer. We will repeat the question. Sorry guys, you get a new question. Next question. Please control, don't waste time yours and ours. No one is going to reprompt. Please. यहाँ तक आवाज आई है। The revolt of 1857 is called the first war of independence of India. True. That is the right answer. False. Very confident answer. Congratulations. Group 2. Buddha was born in Lumbini, Nepal. False. I'm so sorry, that wasn't true. Group 3, next question please. The title Father of the Nation for Mahatma Gandhi was given by Subhash Chandra Bose. False. That wasn't true, I'm so sorry. Group 4. Dr. Rajendra Prasad was the first Prime Minister of India. True or false? False. That is correct. Group 6. Next question please. Sardar Vallabhbhai Patel is known as the Iron Man of India. True. That is correct. Group 8. Your question is, Rabindranath Tagore wrote the poem Sare Jahan Se Achhe. False. That is correct.
Group 9, your question is, B.R. Ambedkar presents the first budget of India. Is that true? True. इनके लिए बहुत अच्छी एंकरिंग किया है। आप लोगों को, बच्चों को, आपको भी ऐसे ही वापस एंकरिंग करके भारत को जानो क्विज खिलाना है सबको। प्रोग्राम्स करूं और आप लोग सब मेरे साथ हैं, जो हैं और जो नहीं भी हैं। मैं कोशिश करूंगी सबसे जुड़े रहने की, और सबको थैंक्स अ लॉट। मैंने आपको अप्रोच किया, आपने सबने मुझे हाँ बोला और आप आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी राष्ट्रगान करना पड़ेगा।